یہ جو راہب آیا تھا پیغمبر مولانا محمد مصطفیٰ سے ہو کر مل کر درخواست کی، اس میں ایک حکمت تھی ذات حدیت کی. تو مولانا نے فرمایا کہ اب تک نہیں لکھی تیرے مقدروں میں اولاد. اس نے اب تک کا لفظ سنا اور اس کے بعد پریشان ہو گیا بیچارہ، روتا ہوا مدینے کی گلیوں میں باہر گیا. جیسے باہر نکلا تو آگے سے دونوں شہزادے چلے آ رہے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین. جیسے چلے نانے کی طرف آ رہے تھے، اب دونوں بھائی اس راہب کو روتے ہوئے دیکھا اور ٹھہر گئے. بڑے مولا حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، حسین دیکھو یہ گلیاں ہمارے نانے کی ہیں، یہ شہر ہمارے نانے کا ہے، یہاں لوگ روتے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ بندہ یہاں سے روتا ہوا جا رہا ہے. آپ کے جملہ حجت نے سمجھایا، نکلا زبان سے، اگر آپ تک یہ ہدایت بن کر پہنچ جائے تو. مولا حسن نے کہا حسین مولا سے کہ آگے ہو کر تو پوچھ. حسین یہ روتا ہوا جا رہا ہے، تو اس سے پوچھ. کیوں؟ کہ رونے والوں کو وارث تو ہے. اب جو رونے والے ہیں حجت نے ہمیں ہدایت کرنے کے لیے بتایا کہ جتنے اس کے غم میں بیٹھ کر روتے ہیں ان کا وارث ہی مولا حسین ہے. اب دیکھو حدیث قصہ میں نے پڑھا ہوا یہی جملہ ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ کو اس نے ساقی کوثر کہا، مولا محمد نے کہا، مولوی نے نہیں کہا. اور مولا حسین کو شافع امتی کہا کہ اے میری امت کے نجات کرنے والے، شفاعت کرنے والے. اب دونوں شہزادوں کے نام ہی اللہ اللہ رکھے ہوئے ہیں. اور جو چیپٹر میں دیتا ہوں اس کو سمجھو، اس فتنے کو دیکھو کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے محمد کی لکھی ہوئی تحریروں کو جھٹلایا. مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی صداقت پہ حرف لائے اور وعدے کیے ہوئے محمد مصطفیٰ کے، اور وعدوں سے پھر گئے اور الٹا انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیے. اب یہ تجھے آج دیکھ لو گے تو کل کی غلطی کی معافی ہو جائے گی. آگے کریم گھرانا ہے. اگر تم اسی پگڈنڈی پہ چلے آئے، ضد میں دوڑتے دوڑتے اتنا دوڑو گے کہ آخر میں بے نقاب ہو جاؤ گے. پھر وہی مشرک نکلاؤ گے جو محمد کے پاس رہ کر بھی مشرک رہے، اور وہ آج بھی مشرک ہی ہیں. یاد رکھ لینا، یہ دین کو جتنا بھی نقصان دیا ہے یہ مشرکین نے دیا ہے. اور روپ بدل کر آتے ہیں. جن کے بت توڑے تھے یہ بتوں والے پھر اس وقت ڈرتے ہوئے فتح مکہ پر دین اسلام کے گھونگھٹ توڑے، لیکن اندر سے وہی فتنہ تھے. جو فتنہ ابھرا، مولا محمد نے کہا تھا کلی میرے بعد دجال سے بڑا فتنہ اٹھے گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو بتایا کہ علی مٹی کے گھوڑے پر ہوگا اور لکڑی کی تلوار ہاتھ میں ہوگی اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی. یہ جلال کی انتہا ہے مولا کی. تو پھر آپ بخوبی جانتے ہو کہ وہ وقت کیسا آیا کہ جب لوگ گئے کہ ہم قبر سے نکال کے محمد مصطفیٰ کا دوبارہ جنازہ پڑھیں گے. یہ خواہش لے کے گئے تھے، اور 3 دن کے انتظار کے بعد اہل بیت نبوہ محمد مصطفیٰ کو لحد میں اتار چکے تھے، مٹی ڈالی جا چکی تھی. اور اس کے بعد جب یہ لوگ گئے تو وہ یہ خود ہی روایت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا وہ باغی گروہ ہوگا جس حالت میں علی کے سامنے آئے گا کہ علی مٹی کا گھوڑا کیا تھا؟ وہ قبر محمد مصطفیٰ تھی. اور لکڑی کی تلوار کیا تھی؟ وہ جو آپ میزان کرنے کے لیے اسٹک گاڑی کھڑی کرتے ہیں سرانے، وہی لکڑی نکال لی. اور پھر مولا کائنات کھڑے ہو گئے جو وارث تھا، جو مالک تھا، جو محافظ تھا، جس کو ابی طالب علیہ السلام نے حکمران بھی کہا. وہ آیا ہی سلطان النصیرہ بن کر ہے، اور قیامت تک وہ اور اس کی اولاد اس دین کی محافظ ہے.
अब जब राहब को मौला हसन मुजतबा ने कहा कि रोने वालों का हुसैन तो वारिस है, तो मौला हुसैन ने उसे पूछा, तो उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई। तो मौला ने कहा, क्या मैं तेरी मुश्किल कुशाई करता हूँ, मैं मुश्किल कुशा का बेटा हूँ। अब लेकर आ गए नाने के बाजार दरबार में। पाक मौला मोहम्मद मुस्तफा में बड़े रसूल पर बैठे हुए बयान कर रहे थे। मालिक फजील थे, दोनों शहजादे आए। जैसे आए हैं तो बहुत जल्दी से मौला मोहम्मद मुस्तफा ने खुतबा रोक दिया। अभी अभी ये बंदा रोता हुआ दरबार से निकला था, अभी अभी दोनों शहजादे इसको लेके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। जैसे दाखिल हुए, लोगों ने तो देखा फौरन कि ये तो अभी गया बंदा जिसको रसूल ने जवाब दे दिया, अब फिर आ गया ये। जैसे दाखिल हुए, पाक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जल्दी से तेज से कदम चलकर दोनों शहजादों को उठाकर सीने से लगाया और बोसे देता हुआ उसी मिंबर पे आके बैठ गया। एक जानब पे मौला हसन मुजतबा को बिठाया, एक में मौला हुसैन को बैठा दिया। अब मौला हुसैन ने ये जानू छोड़ा नाना का और मिंबर के जीने उतर के सामने खड़े हो गए। 20-25 साल के नहीं थे, अरे मासूम है, 4-5 साल के हैं शहजादे, तो नाने के दरबार के सामने खड़े हो गए हैं, है ना। 5 साल का शहजादा जब खड़े हो गए तो आखिरी याम है मौला मोहम्मद मुस्तफा के भी। जानता था, उम्र की तेवरात देखते थे, मौला मोहम्मद मुस्तफा अली से हसद जो पल रहा था उसे भी देख रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े मुशरिकीन के सर उसने उतारे थे। उसने तो उतारे थे अल्लाह के हुक्म की वजह से, जो अल्लाह का हुक्म होता है ना, लेकिन लोगों ने उसको ज़ाती दुश्मनी बनाई। उनको अल्लाह का वली माना ही नहीं, उनको सुल्तानों ने सीरत तस्लीम ही नहीं किया, और उस तसब में आकर ये सारे आकर गुजर रहे। अब उसी राहब को जब मौला ने 7 बेटे दिए, नाना ने पूछा कि मेरे लाल, क्या नाना का जानू प्यारा नहीं लगा? कहा, नाना आज मैं इस राहब का वकील बन के आया हूँ। अब हुज्जत खुदा के जो आज करबला में 2 मुहर्रम को घर बार के बच्चे मासूम लेकर अगर ये जंग लड़ने आता, ये तख्त की जंग होता, तो फिर मासूम बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके मैदान में ना आता। अपने ज़मीर, अपने गिरबानों को झांको और सदाकत को समझो। ये किसका है? ये अकेला शियों का हुसैन है ना। जो मौला मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती होने का दावा करता है, ये उन सब का है। और ये सारे मिलकर बैठेंगे तो फिर इनको समझ आएगी कि हमें ये बंटवारे डालने वाले कौन है, और ये सफ़े मातम पर बैठना। अरे देखो, आपने घरों में नहीं देखते, अगर तुम्हारे को बड़ा बूढ़ा दुनिया से जाता है तो जो तुम्हारे लगते होते हैं वही आते हैं, है ना। कत्ल गारत भी होती है तुम्हारे इलाकों में, तो क्या कभी कातल भी आके फूड़ी पे बैठे हैं? है ना बेटा, फूड़ी पे वही बैठेंगे जो तुम्हारे लगते होंगे। गैर फूड़ी पे या कातल फूड़ी पर आकर नहीं बैठते, वो उनमें तोहमतें लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। और देख लो, जैसे पहले पिछले नबी भी शहीद होते रहे, लेकिन शहादत ही अजीब किस्म की है। उसके कारखाना कुदरत में ये थी, होना नहीं था ऐसे, लेकिन ज़ात देख रही थी कि कुछ बदरूहें ऐसी हैं जो ऐसा करेंगे, तो उनके लिए फिर एहतमाम किया गया। अब मौला हुसैन ने नाने के दरबार में खड़ा होकर राहब का मुकदमा लड़ा है, तो क्या उसने कहा मैं तुझे अल्लाह से लेके देता हूँ? कहा नहीं। हुज्जत के जुमले हैं कि जा मैं हुसैन ने तुझे 1 बेटा दिया, फिर कहा जा मैं हुसैन ने तुझे 2 बेटे दिए, फिर 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, और जब 7 कहा तो वो राहब
दरबारे रसूल में खड़ा उस मासूम शहजादा पाक मौला हुसैन के कदमों में जो अली का लाल है। अल्लाह ने कहा, अली की औलाद ही मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा, मैं अली की औलाद से ही तेरी नस्ल को चलाऊंगा, तेरे शजरे को। अली की औलाद ही तेरी औलाद है। तो जो अली की औलाद है सारी की सारी कलमातुल्लाह है। उनमें आधे वो उम्मती नहीं है, आधे जो सैयद नहीं है, वो सारे के टोटल ही कलमातुल्लाह है। ये याद रख लेना। जिसने अली की औलाद में तकसीम डाली उसके अपने में शक है, वो अपने गिरबान को झांके कि वो कौन है जो अली के घर में तकसीम डाले या उसकी औलाद में तकसीम डाले। जब इसने दिए, अब नाना ने देखा, जब दे के साथ बेटे आया तो फिर नाना ने एहतमाम हुज्जत किया। मौला हसन मुजतबा का मुँह चूमा किसी वक्त को याद करके, और शहनशाह की गर्दन पे बोसे दिए। फिर मुंह किया आगे मौला ने, नाना ने फिर उसकी गर्दन पे बोसा दिया। जब गर्दन पे बोसे देता नाना, उस वक्त को याद करके कि ये क्या करने आए हैं और ये क्या कर रहे हैं। आज तक भी हम यही देख रहे हैं कि जो उस घराने से तल्लक रखता है वो उनको जहन्नम से बचाते हैं, और उनके शयातीन जो हैं वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। जिन शयातीन के कब्जे में आए होते हैं ना, वो जब उनको छुड़ाया जाता है तो फिर शयातीन पीछे से तकब्बर से देखती हैं। अब वो तो जहालत में होते हैं, अनपढ़ होते हैं बेचारे, उनको क्या पता हो हम क्या कर रहे हैं। उनको पढ़ाया गया ना, मुर्शद ने सबको दिया हुआ है कि पढ़ रहा है, मुदरना पढ़ रहा है, आकड़ा पढ़ रहा है, आज चढ़ाई पढ़ रहा है, आज डंका पढ़ रहा है। तो लफ्ज ने वो तो बेचारा अनपढ़ है, उन्हें तो शौकरन रखे कि मुर्शद देन दिया है। तो मुर्शद गलत तो नहीं देन दिया, तो मुर्शद आप डंके पढ़ के तो मुशरिक होया होंदा है। तो कोई मरीजा ने तो वही करना ना, उन्होंने पता अली दी विलायत की है, इस कारण दीन की है ना। जिले आप जाप जपला पे पंडितां दे, उन्होंने सिख के पंडितां दे कलमात ते देवी देवतियां दे कलमात जिला पढ़ के ते आखे कि मैं सैयद आ, ये मैं शिया वा, है ना। ऐसे पे अल्लाह भी भेजता है और हम भी भेजते हैं। वो मुशरिक होते हैं, उन्होंने दीन को नुकसान पहुँचाया। अपने आप के नमाजें सही करो, अपने अंदर के अकीदे सही करो, और विलायत जो दीन खुम्मे के दीन पर जारी हुआ है, दीन वही अकमल है और वही चलना है क़यामत तक। और जो उस दीन पर होगा वही मोहम्मद का उम्मती होगा। अब जब मौला ने 7 बेटे दिए और राहब कदमों में सजदे में गिर गया और कहने लगा मौला बस 7 काफ़ी हैं। तो अब उस शहजादे ने उस वक़्त कहा, राहब अगर तू बस ना कहता, एक तरफ आदम के दिए हुए बेटे होते, एक तरफ मुझे हुसैन के दिए हुए बेटे होते। तो ये क्या इख्तियार रखते हैं, तुम्हारी अक्लों में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जब जिसको चाहे आदम सानी बना दें, है ना, तो वो बातें और वो ज़ाती और हैं, वो अल्लाह के चुने हुए हैं और बिला फसल हैं। वो नूर अला नूर हैं, उनमें फ़र्क नहीं है। और जो उनमें फ़र्क डालेगा वही इब्लीस का चेला होगा और वो मुशरिकीन में जाएगा। उसकी सारी इबादतें वो मुंह पे मार देगा। अब इस वक्त को याद करके जब मौला हुसैन के गर्दन पे बोसे दिए और मौला हसन के मुंह पर बोसे दिए, तो शहजादे ने नाना का जानू छोड़ा और चला घर की तरफ। रास्ते में मौला कायनात बैठे हुए थे, सलमान, कंबर, मिकदाद, ये भी मौला की महफिल में बैठे होते थे, फजाइल सुनते, मौला से इल्म हासिल करते विलायत के। आज जब मौला हुसैन गुजरे तो नाना से और सीधे आंखों में आंसू और रोता हुआ घर की दहलीज अबूर की। भी मौला कायनात का घर का दरवाज़ा सीधा मस्जिद में तो खुलता था, बाकी सारे बंद करवा दिए गए थे। नाने के जानू से उतरा, सीधा घर चला गया। जैसे घर गया माँ के पास, माँ से रोना बर्दाश्त ना हुआ। माँ ने कहा हुआ क्या? कहा होना क्या था कि मैं नाना के पास गया हूँ, तो नाना ने भाई हसन के मुंह पे बोसा दिया, तो मेरी गर्दन पे बोसे दिए। तो मैंने अम्मा बार बार मुंह आगे किया,
लेकिन नाना मेरा मुंह पीछे कर देते और गर्दन पे बोसे देते। आपने पूछना है नाना से कि भाई हसन का मुंह क्यों चूमा और मेरी गर्दन पे बोसे के दिए, मेरा मुंह क्यों नहीं चूमा। शहजादा था, जानते थे वो, ये हमें समझाने के लिए, ये अपने घर की बातें वो हम तक पहुंचाने के लिए ये जरिया हिदायत है। जब पाक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होके और घर गए तो जनाब सैयद ने सवाल ही ये रखा कि बाबा आप मुझे ये बताएं कि आज आपने हसन का मुंह चूमा है तो हुसैन के गर्दन पे बोसे दिए। तो सैयदुल मुरसलीन बर्दाश्त से बाहर हो गई। कहा मेरा लाल ये ना पूछ। कहा नहीं बाबा आपको मेरे हक की कसम है, आप बताएं कि हसन का मुंह क्यों चूमा और हुसैन की गर्दन पे बोसे क्यों दिए। तो फिर पाक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वो मक्तल पढ़ी, मौला हुसैन की मक्तल पढ़ी कि कुछ मौलाउन ऐसे होंगे जो तेरे लाल हसन को ज़हर देंगे और तेरे बेटे को उस तप्ते सहरा में शहीद करेंगे। मैंने उस वक़्त को याद करते हुए ये वाक़या किया तो सईदा की धारें निकल गई। तो कहा बाबा आप ना होंगे। कहा ज़ाहरन मैं ना होऊंगा। तो बाबा आप ना होंगे जिसका बाबा तो होगा ना। कहा ज़ाहरन वो भी ना होंगे। अब हुसैन को भूखे प्यासे को ज़िबा किया जाएगा तो वो कर देंगे और वो बागी होंगे, दीन के मुशरिकीन होंगे। ये वाक़या बयान हुआ। अब जनाब मौला हुसैन देख रहे थे, माँ भी मौजूद थी, बाबा भी मौजूद था, भाई भी मौजूद था, बहनें भी मौजूद थीं। जब मक्तल पढ़ी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सबके सामने तो मौला हुसैन देख रहे थे। तो अपने बाबा से नाना से पूछा कि नाना वो जो मुझे शहीद करेंगे। तो सैयदा ने कहा बाबा तो फिर मेरे हुसैन को रोएगा कौन। जब ये जुमला कहा तो कहा जो अल्लाह ने कानून बना रखा है तेरे लाल को रोने वाले आदम से शुरू हैं इसकी मजलूमियत पर और क़यामत तक इसकी मजलूमियत का मातम भी करते रहेंगे और पुरसा भी देंगे। अल्लाह ने उन रूहों को, नस्लों को, उन कबीलों को चुन रखा है। तो नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं उनकी शफाअत के बगैर दखूल जन्नत नहीं होऊंगा। जब मौला कायनात ने कहा कि मैं जब तक उनको हौज़े कौसर से सरसबील ना कर दूं मैं कौसर का किनारा नहीं छोड़ूंगा। पाक सैयदा ने कहा मैं दरवाज़ा जन्नत पे खड़ी हो जाऊंगी और मेरे मजलूम हुसैन के गम में जो रोने वाले हैं जब तक एक एक मैं दखूल जन्नत न करूं मैं दरवाज़ा जन्नत से ना हटूंगी। ये सब ने गवाहियाँ दी हुई हैं, आप तक पहुंची हुई हैं या नहीं पहुंची। अब तक आप तक पहुंच रही है और बता रहा हूँ कि गम हुसैन में सफ़े मातम पे जो जो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा है उन सब का हक बनता है क्योंकि मोहम्मद सबका रसूल है जो अल्लाह का रसूल। हम उसके उम्मती बनने के दावे करते हैं तो उसके बेटे का पुरसा जो है उसको सारे मिलकर अपना अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के गम में शामिल होने के लिए इन हदूदों को तोड़ो और पिछले कुफ्र व शिरक से माफ़ी मांगो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर उस बज़म का हिस्सा बनो ताकि दुनिया को पता चले कि ये सारे के सारे कातल नहीं हैं, ये तो पुरसे में बैठे हुए हैं। तो आपका पुरसे में बैठ जाना, सफ़े मातम पे बैठ जाना, उन मौलानों की ज़ुबानों को बंद करो जिस पुरसे के ख़िलाफ़ जुमले बोलते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हम ये जुमले क्या कह रहे हैं और कह किन के लिए। अब नेट का दौर है, दुनिया वर्ल्ड देख रही है, अपना तमाशा देख रही है कि आपके जुमले हदों से इतना बढ़ गए हो कि तुम ये ऐलान कर दिया कि जिसका नाम हसन है, जिसका नाम हुसैन है, जिसका नाम अब्बास है, जिसका नाम अली है, उनको अपने इलाकों से निकाल दिया। तो बकाया दीन क्या बचा? यही तो दीन का खासा है, ये तो अल्लाह के होने पर दलील है।
جن ناموں سے تم نفرت کر رہے ہو, بڑے بڑے مندر بنوا دیے سنے, تم اقرار کر رہے ہو اپنے آپ کا کہ تم ہو کون. تو آج کے جملے اتنے ہی کافی ہیں.